Hello, everybody. I hope you are making good progress with improving your English and preparing for IELTS. I am making this video to help you learn some important words associated with technology. These words will help you in all subtests: listening, reading, writing, and speaking. But other than that, I feel that you absolutely need to know these words for day-to-day functioning because you'll encounter them everywhere in movies, TV series, newspapers, magazines, ads, and YouTube videos. I strongly recommend that you note down the meanings of these words and the example sentences in your own hand because that's the only way to store them in your long-term memory. So here we go. The first word is technology itself. The meaning of technology is the application of scientific knowledge for practical purposes. देखें, जो प्योर साइंस होती है उससे डिस्कवरीज होती हैं, फिजिकल यूनिवर्स की नेचर का समझ आता है, मैटर एनर्जी कैसे बिहेव करती हैं ये सब समझ आता है, और उस नॉलेज को जब अप्लाई किया जाता है यूज़फुल चीज़ें बनाने के लिए तब उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो ऑल द कॉलोकेशंस that are used with technology. If you have to write an essay on technology, or if you have to speak on a cue card topic, or if you have to answer speaking part 3 questions on technology, then you'll have to use all these collocations. ये वो words मैं आपको बताने लगा हूँ जो टेक्नोलॉजी के साथ आम तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और साथ साथ मैं एक एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी आपके लिए बनाऊँगा. द फर्स्ट इज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. Modern technology has completely changed the way we communicate with others. अच्छा, मॉडर्न के स्पेलिंग ध्यान से नोट करें, बहुत लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं जब मॉडर्न लिखते हैं. तो नेक्स्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स आर रियली फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्साइट करने वाले. नेक्स्ट इज प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी. आजकल जो यूज़ की जा रही है टेक्नोलॉजी. प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वे पीपल लिव एंड वर्क. Then new technology, it's fairly simple. New technology is a powerful tool to shape the future. Next is advanced technology. Now it is easier to connect with others due to advanced technology. Next, advances in technology. And sentences. Advances in technology have improved healthcare. उसके बाद, to have the technology to do something. We will soon have the technology to stop global warming. Next, to adopt technology. Technology को accept करना, उसको use करना शुरू करना. Example, in developing countries, people are slow to adopt technology. Next, to apply technology for solving a problem. And sentences, we must apply technology for the betterment of society. उसके बाद है to employ technology to do something. Employ का मतलब भी वही है, यूज़ करना. Law enforcement agencies should employ technology to fight crime. Law enforcement agencies उन agencies को कहा जाता है जो law को लागू करने के लिए responsible होती हैं, जैसे कि पुलिस and CBI etc. Next we have to take advantage of technology. टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना. Example sentence, universities should take advantage of technology to improve their results. उसके बाद बहुत सिंपल, to use technology. Man must learn to use technology wisely. Next, to invest in technology. Example, it is important for a company to invest in technology in order to stay ahead of its competitors. Next, to develop the technology to do something to achieve a goal. For example, many companies are trying to develop the technology to solve global problems like pollution. उसके बाद आप कह सकते हैं कि technology helps people do something और technology enables people to do something. For example, today, technology enables people to work from home. This is very true in today's COVID times. Many people are now doing their jobs from home, and it is only because of technology. And the last one is impact of technology on something. For example, the impact of technology on human life cannot be denied.
डिनाई का मतलब होता है किसी चीज़ को ना मानना, किसी चीज़ से मुकर जाना। तो सेंटेंस का मतलब है कि ह्यूमन लाइफ पे टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस 3 वर्ड्स विच पीपल ऑफन कंफ्यूज एंड मिक्स अप। और वो 3 वर्ड्स हैं डिस्कवर, इन्वेंट एंड इनोवेट। तो सबसे पहले डिस्कवर। टू डिस्कवर समथिंग मीन्स टू फाइंड समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। वो चीज़ पहले से थी और आपने उसे जाके ढूंढ लिया। फॉर एग्जाम्पल, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। और इसका नाउन फॉर्म भी है डिस्कवरी। डिस्कवरी का सेंटेंस ऐसे बन सकता है कि द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वॉज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोग्रेस ऑफ मेडिकल साइंस। द नेक्स्ट वर्ड इज इन्वेंट, which means to create something that did not exist before. For example, the telephone was invented by Graham Bell. तो ऐसा कोई डिवाइस पहले नहीं था, नेचर में नहीं पाया जाता था, ग्रैहम बेल ने उसको बनाया, नए सिरे से उसको इन्वेंट किया। इन्वेंट का नाउन है इन्वेंशन। सेंटेंस बना सकते हैं कि द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन हैज मेड कम्युनिकेशन मच ईजियर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इनोवेट। इट मीन्स टू चेंज द वे समथिंग इज डन और मेड। किसी चीज़ को करने का नया या बेहतर तरीका ढूंढना, किसी प्रोसेस में सुधार लाना, किसी काम को करने का मोर एफिशिएंट, बेटर, चीपर तरीका निकालना। फॉर एग्जाम्पल, टुडेज कंपनीज मस्ट इनोवेट कॉन्स्टेंटली टू रिमेन कंपेटिटिव। इनोवेट का नाउन है इनोवेशन। फॉर एग्जाम्पल, there have been many innovations in the field of online teaching in the last few months. बहुत सारे टीचर्स ने नए नए तरीके निकाले हैं अपनी टीचिंग को मोर इफेक्टिव, मोर एफिशिएंट बनाने के लिए, ऑनलाइन बच्चों को और बेहतर पढ़ाने के लिए। फिर इससे एक एडजेक्टिव भी बनता है इनोवेटिव। इनोवेटिव बंदा होता है जो चीज़ों को करने के नए नए तरीके ढूंढता है। फॉर एग्जाम्पल, if you love to experiment and you love to find new ways to do things, then we can say that you are an innovative person. ये जो वर्ड इनोवेटिव है ये जिस रूट से आता है NOV, उसका मतलब होता है न्यू। और इससे कुछ और जो वर्ड्स आते हैं वो है नॉवल। एक तो नॉवल पढ़ने वाला नॉवल होता है ना, एक नॉवल का मतलब न्यू भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ नॉवल आइडिया, नॉवल्टी, न्यूनेस किसी चीज़ की। और एक वर्ड है नोविस, दैट वर्ड ऑल्सो कम्स फ्रॉम द सेम रूट। नोविस का मतलब होता है जो बंदा नया है किसी फील्ड में और इनएक्सपीरियंस्ड है। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक थ्रू। इट मीन्स अ सडन, ड्रामेटिक एंड इंपॉर्टेंट डिस्कवरी और इवेंट दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव अ सिचुएशन और सॉल्व अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट्स आर वेरी क्लोज टू अ ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर रिसर्च में मिलियंस ऑफ डॉलर्स जा चुके हैं। कई डेकेड से हम सुन रहे हैं कि कैंसर का क्योर मिलने वाला है, जल्दी ही मिल जाएगा, बट अभी तक कैंसर ट्रीटमेंट में कोई गारंटीज नहीं है। लास्ट स्टेज कैंसर जो है वो क्योर नहीं हो सकता। कुछ टाइप्स ऑफ कैंसर हैं जिसमें कुछ लोग रिकवर कर जाते हैं। तो एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ कैंसर रिसर्च। द नेक्स्ट वर्ड इज रेवोल्यूशनाइज। टू चेंज समथिंग रेडिकली और फंडामेंटली, बहुत बिग, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किसी फील्ड में लेकर आना। फॉर एग्जाम्पल, द इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और इसका नाउन फॉर्म है रेवोल्यूशन। आप रेवोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं कि द इंटरनेट हैज़ ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये अबाउट याद रखना है। मैनी पीपल मेक दिस मिस्टेक। टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन नहीं होता, टू ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन होता है हमेशा। द नेक्स्ट वर्ड इज सोफिस्टिकेटेड। ये वर्ड भी आपको बहुत सुनने को मिलेगा टेक्नोलॉजी के साथ। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड। कोई मशीन, कोई टेक्नोलॉजी अगर सोफिस्टिकेटेड है तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसको समझना मुश्किल है और वो बड़ी एडवांस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, computers are becoming more sophisticated day by day. You can also use sophisticated to describe a person. तो sophisticated person कैसा होता है? A person who has a great deal of worldly experience and who has a lot of knowledge about fashion and culture, who's very stylish and modern. इस तरह के बंदे को भी बोलते हैं sophisticated. He's a very sophisticated guy.
Next, we have two words which are used very commonly when we talk about new technology. पहला वर्ड है कटिंग एज. कटिंग एज का मतलब है लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड, सबसे आगे वाला. जैसे आप सोचें, अगर आप चाकू के साथ किसी चीज़ को काट रहे हैं तो चाकू की धार जो है सबसे आगे होती है, एंड दैट एज इज डूइंग मोस्ट ऑफ द कटिंग. फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज आर यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स. कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेट ऑफ द आर्ट. इसका मतलब होता है लेटेस्ट एंड बेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, दिस न्यू मोबाइल फोन यूजेस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी. स्टेट ऑफ द आर्ट है जो, ये एक कंपाउंड वर्ड है. दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर जब किसी वर्ड को बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड. एंड कंपाउंड वर्ड्स आर मेड समटाइम्स यूजिंग अ हाइफन एंड समटाइम्स दे आर रिटन विदाउट अ हाइफन. हाइफन के साथ जो कंपाउंड वर्ड्स बनाए जाते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं मैरी गो राउंड, झूला होता है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, लॉन्ग टर्म, अप टू डेट. ये सारे वर्ड्स को हाइफन के साथ लिखा जाता है. और विदाउट अ हाइफन कंपाउंड वर्ड्स की एग्जाम्पल्स हैं कीबोर्ड, नोटबुक, बुक शॉप, एट्सेट्रा. द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सोलीट. इट मीन्स ओल्ड फैशन्ड एंड नो लॉन्गर इन यूज़. कोई चीज़ जो घिस पिट गई है, अब उसको यूज़ नहीं करता कोई भी, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट. फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर्स हैव मेड टाइपराइटर्स ऑब्सोलीट. पहले लोग टाइपराइटर्स यूज़ करते थे डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर्स अफोर्डेबल हुए और लोगों ने सीख लिया कंप्यूटर्स को यूज़ करना, तो उसके बाद फिर टाइपराइटर्स जो हैं ऑब्सोलीट हो गए, क्योंकि अ पर्सन कैन डू मच मोर विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर दैन विद टाइपराइटर. कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं. The next word is device. It means a machine made for a particular purpose, such as a phone or a computer. कोई भी यंत्र, कोई भी मशीन को कहते हैं डिवाइस. फॉर एग्जाम्पल, अ टैबलेट इज़ अ यूजफुल डिवाइस. अ मोबाइल फोन इज़ अ वेरी यूजफुल डिवाइस. इसी तरह का एक और वर्ड है गैजेट. इट्स अ स्मॉल मशीन और डिवाइस विच डज समथिंग यूजफुल. For example, he loves to buy new gadgets. Next, we have appliance, a machine or device used in the house, such as air conditioners, dishwashers, refrigerators, water heaters, microwave ovens, washing machines, etc. For example, it's difficult to imagine life without household appliances, or we can also say domestic appliances. The next word is gizmo. Gizmo का मतलब भी होता है कि a small device that gets a job done, which is made for a particular purpose. Example, he has bought a new gizmo to monitor his blood pressure. Monitor का मतलब होता है वॉच करना, ध्यान रखना. The next word is technophile. A person who loves technology. ये वर्ड दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है. एक तो टेक्नोलॉजी से आया टेक्नो, और फाइल जो है ये रूट होता है टू लव. तो टेक्नोफाइल, अ पर्सन हु लव्स टेक्नोलॉजी. आई वुड लाइक टू टेल यू टू अदर वर्ड्स जिसमें फाइल यूज होता है. एक तो है बिब्लियोफाइल, अ पर्सन हु लव्स बुक्स. देखें, बिब्लियो बाइबल से आया है, बाइबल मतलब बुक, और बुक्स को लव करने वाला बिब्लियोफाइल. देन अनदर वर्ड फ्रॉम द सेम रूट इज pedophile, a person who is sexually attracted to children. Next word on the list is technophobe, a person who fears, dislikes or avoids new technology. जैसे टेक्नोफाइल टेक्नोलॉजी और फाइल को मिला के बनाया गया था, ऐसे ही टेक्नोफोब टेक्नोलॉजी और फोबिया को मिलाकर बनाया गया है. फोबिया का मतलब होता है irrational, unreasonable fear of something. I would like to tell you some other words which come from the same root. सबसे पहले हाइड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ वाटर. हाइड्रो आपको पता होगा वाटर की रूट है. देन क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ कन्फाइंड और क्राउडेड प्लेसेस. अच्छा, इनको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. इफ समबडी सफर्स फ्रॉम हाइड्रोफोबिया, ही कैन से दैट आई फील हाइड्रोफोबिक, या आई एम हाइड्रोफोबिक, आई एम फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक. नेक्स्ट वर्ड इज एरोफोबिया, fear of flying, fear of traveling by plane.
Then acrophobia, fear of heights. After that, pyrophobia, fear of fire. And last one is xenophobia, fear of strangers or foreigners. अगला वर्ड है टेक सेवी या टेक्नो सेवी. A person who knows a lot about modern technology, especially computers. सेवी का मतलब होता है to know or to understand something. तो टेक सेवी ऐसा बंदा है who has a good understanding of modern technology, especially computers. For example, these days, companies are hiring only those people who are tech savvy. Next word is techie, someone who works with and knows a lot about technical things, especially relating to computers. For example, my brother is a techie, he's a software developer. So all those people who work in the field of technology and software development, we can call them techies. Alright, next word is geek. A person who's intelligent and very interested in a particular subject, but not fashionable or popular. तो geek हम इस तरह के बंदे को कहते हैं जो है तो बड़ा ब्रेनी, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, किसी खास फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, बट ही इज़ बोरिंग एंड ही इज़ सोशली ऑकवर्ड, ही डजंट नो हाउ टू टॉक टू पीपल, थोड़ा एक्सेंट्रिक है, क्रैकपॉट है, थोड़ा सा मेन स्ट्रीम नहीं है, अजीब सा है. और ऐसे बंदे के लिए एक वर्ड और आप यूज़ कर सकते हैं, नर्ड. गीक और नर्ड का सेम मीनिंग होता है. एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ कंप्यूटर गीक. नेक्स्ट वर्ड आपने बहुत सुना होगा, मल्टीमीडिया. देखिए, मल्टी का मतलब है बहुत सारे और मीडिया का मतलब है माध्यम. तो बहुत सारे माध्यम इस्तेमाल करना कम्युनिकेट करने के लिए, किसी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए. तो इसका मीनिंग है द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू प्रेजेंट एंड कंबाइन टेक्स्ट, audio, images, animation and video along with links that let the user navigate, interact and communicate. For example, multimedia is widely used in educational sites these days. Next is high tech. देखिए, हाई दो तरह से लिखा जाता है, HIGH या HI से भी इस वर्ड को लिख देते हैं. जिसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ हो उसको बोलते हैं हाई टेक. For example, we have installed a high-tech security system in our home. Next is Wi-Fi. It means wireless communication between computers, smartphones, and other devices. For example, the Wi-Fi internet in this area is awful. Awful का मतलब बहुत ख़राब. अच्छा, इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो भी बड़ा फ़नी है. असल में एक वर्ड होता था पहले, हाई फाई. हाई फाई का मतलब था हाई फिडेलिटी. इट वाज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक. बहुत अच्छी क्वालिटी का म्यूज़िक जो प्रोड्यूस करती थी मशीन, उसको बोलते थे हाई फाई. उस टेक्नोलॉजी को बोलते थे हाई फाई. तो जब ये वर्ड कॉइन किया गया वाई फाई, इट वॉज अ काइंड ऑफ पन या कह लीजिए जोक ऑन द वर्ड हाई फाई. हाई फाई से लिया उन्होंने वाई फाई. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT. ये तो बहुत सुनते हैं हम रोज़. द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर, रिट्रीव का मतलब निकालना, ट्रांसमिट मतलब कन्वे करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एंड प्रोसेस डेटा और इंफॉर्मेशन. सेंटेंस, आवर वर्ल्ड हैज़ बिन ट्रांसफॉर्म्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Next is telecommunications. It means communication over a distance by cable, telegraph, phone, radio, TV, optical fibers, satellites, etc. अच्छा, ये वर्ड ज़्यादातर प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मैनी टेक्नोलॉजीज, और शॉर्ट में इसको टेलीकॉम भी बोल देते हैं. एग्जाम्पल, थैंक्स टू द रैपिड ग्रोथ इन टेलीकम्युनिकेशंस, many people can now do their jobs from their homes. Next is patent, the legal right to make or sell an invention for a particular number of years. जो इन्वेंटर होता है उसको लीगल राइट मिल जाता है कि उसके अलावा और कोई उस चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, आवर कंपनी हैज़ फाइल्ड अ पेटेंट ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी. द नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोमेशन. It means the use of machines or computers instead of people to do a job.
मतलब प्रोसेसेस को ऑटोमेटिक बनाना, सिर्फ मशीन्स ही उनको कर सकें, कंप्यूटर्स उनको कंट्रोल कर सकें और ह्यूमन लेबर की ज़रूरत ना पड़े. फॉर एग्जाम्पल, automation will mean the loss of many jobs in this industry. The next word we have is robotics. It is the science of making and using robots. ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी है आने वाले डेकेड्स में. फॉर एग्जाम्पल, robotics is a rapidly growing field. The next term is artificial intelligence or AI. It is the ability of computers to perform tasks that require natural intelligence displayed by humans and animals. आपने बहुत सुना होगा कि कंप्यूटर जो है उसमें इंटेलिजेंस नहीं होती, उसको प्रोग्राम करना पड़ता है, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, तब वो कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है. बट नाउ वी आर ट्रेनिंग कंप्यूटर्स टू मेक डिसीजंस बाय देमसेल्व्स. कंप्यूटर्स में ऐसी इंटेलिजेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि वो ह्यूमंस की तरह सोच सकें, चीज़ों को आपस में कंपेयर कर सकें, डिसीजंस कर सकें. और इसकी एप्लीकेशंस हैं लाइक ड्रोन्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, कंप्यूटर्स प्लेइंग गेम्स लाइक चेस, और सर्च इंजन्स, ऑनलाइन असिस्टेंट्स लाइक सिरी, फेस रिकॉग्निशन इन अ क्राउड, एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू मेक वेदर प्रेडिक्शंस. ये सारे AI के एप्लीकेशंस हैं. और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि AI है जो वो एट सम पॉइंट ह्यूमंस के लिए बड़ी डेंजरस हो जाएगी बिकॉज मशीन्स आर गोइंग टू टेक ओवर द प्लैनेट. और एग्जाम्पल सेंटेंस है कि सम पीपल कंसिडर, मानते हैं, AI टू बी अ डेंजर टू ह्यूमैनिटी. द नेक्स्ट वर्ड इज मैकेनाइजेशन. मशीन से बना है मैकेनाइजेशन, द यूज़ ऑफ मशीन्स टू रिप्लेस ह्यूमन और एनिमल लेबर. जो काम पहले इंसान करते थे, हाथ से किया जाता था जो काम, उसको अब मशीन्स की हेल्प से किया जाता है. इसको बोलते हैं मैकेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, द मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग हैज़ बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स. देखें, फार्मिंग में अगर मैकेनाइजेशन होगी उसके फ़ायदे क्या होंगे? मोर एफिशिएंसी, लोअर कॉस्ट वगैरह. लेकिन उसके कुछ नुकसान भी होंगे जो कि हैं लॉस ऑफ जॉब्स एंड मोर पोल्यूशन. The next word is hardware. All the physical parts of a computer or any device. वो सारे parts कंप्यूटर के जिनको आप टच कर सकते हैं उसको बोलते हैं हार्डवेयर. For example, computer hardware has become more expensive due to the COVID-19 pandemic. तो कंप्यूटर के कौन से वो पार्ट्स हैं जिनको आप टच कर सकते हैं? आपके सामने मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस है, UPS, प्रिंटर वगैरह. उसके अलावा फिर एक मदरबोर्ड होता है, CPU होता है, फ़ैन, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, रैम, ये सारा कुछ होता है. तो ये सारे फिजिकल पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर के, उसको बोलते हैं हार्डवेयर. एंड मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर इज़ मेड इन ताइवान. और नेक्स्ट वर्ड है सॉफ्टवेयर. All the programs, instructions and data that tell a computer what to do. All those parts of a computer which you cannot touch or see. उन सबको बोलते हैं सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऑन माई कंप्यूटर. तो पायरेटेड का मतलब है जो कॉपी किया हुआ है इलीगली. ये वर्ड आया है पायरेट से. पायरेट बोलते थे समुद्री डाकू को पुराने ज़माने में, और इसका मतलब है चोर बेसिकली. और इससे बनता है पायरेसी, का मतलब है चोरी. जो इंटरनेट से लोग मूवीज़ डाउनलोड कर लेते हैं, सॉन्ग्स डाउनलोड कर लेते हैं, या अपने कंप्यूटर में जो है विंडोज़ डुप्लीकेट कॉपी उसकी इंस्टॉल कर लेते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं पायरेसी. और ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है पायरेटेड.